Hello my dear students, welcome to today's session. This is Achal, your mentor, and we are taking up SST for class 6, right? And this is civics chapter number 3, government, right? जो हमारी government है, जो हमारे पूरे देश को चलाती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. So we'll be learning about what is government, franchise का मतलब क्या होता है, women's suffrage movement and the struggle against apartheid, right? So all these we'll be covering today. So the person or group of persons who make the rules and also ensure that the rules are followed properly is known as government, right? So वो group लोगों का जो कुछ rules बनाते हैं हमारी country के लिए, और then they also make sure that people are following those rules, right? So that our country is governed easily, governed properly, effectively. So all those people, they form the government. वो सब government होती है जो ये rules बनाती है और ensure करती है कि लोग उन rules को follow कर रहे हैं. Now what is government? Let's see. The term government refers to the political system by which society consisting of a group of people is governed. जिससे कि हमारी जो society है, जो लोग हैं हमारे देश के, वो सब easily govern किए जा सकें. The word government comes from the Latin word governare, which means to steer a ship or to guide, right? Government क्या करती है, हमें guide करती है. It comes from the word governare, जिसका मतलब होता है to steer a ship, मतलब ship को सही दिशा में लेकर जाना, उसे guide करना. And why do we need a government? First of all, so every country needs a government to make decisions, make rules and ensure the welfare of its people, right? कुछ decisions जो लेने होते हैं देश के लिए वो government लेती है, कुछ rules बनाती है किस तरीके से देश को चलना चाहिए और लोगों की, अपने लोगों के welfare के लिए यानी भलाई के लिए काम करती है. Perhaps we wonder how the government manages to do all the work and why it is necessary for the government to do all the work. हम ये सोचते होंगे कि government ये सब क्यों करती है, कैसे करती है. It is clear that there is a need for an organization which makes decisions for the welfare of the people. So हर कोई इंसान अगर अपना decision खुद लेने लगेगा तो हर इंसान सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचेगा, right? That is why there was a need for the government who thinks of the people as the whole. पूरा कि सारे देशों के सारे लोगों के, अपने देश के सारे लोगों की भलाई के लिए जो काम करते हैं वो government decisions लेती है. Now let's see what are the organs of a government. The functions of the government are carried out by its main organs, जो कि हैं 3 organs हैं उसके. The legislature, जिसका काम क्या होता है, legislative body होती है, which is the law making body. जितने भी हमारी country में laws हैं ये सब legislature बनाती है, legislative body वो laws बनाती है. Then the executive, which implements the laws. जो executives होते हैं, right? जो हमारे ministers होते हैं, cabinet हो गया, ये सब उन laws को implement करते हैं यानी लागू करते हैं. And the judiciary, जो हमारी law making body, law body जो देखती है, ensure करती है कि ये laws follow किए जा रहे हैं नहीं, ensure that laws are followed by both the government and the citizens. जो ये laws बनाए जाते हैं ये government के लिए और citizens के लिए, सब के लिए बनाए जाते हैं. So this judiciary, it makes sure that the laws are being followed properly. So the functions of a government, let's see that. So a government looks after the welfare of the people by taking up projects for providing health services, right? लोगों की जो लोग हैं उनकी health services को provide करते हैं, hospitals provide करते हैं, medicines provide करते हैं. education के लिए बहुत काम करती है हमारी government. It takes care कि institutes होने चाहिए, अच्छे institutes हो, and to prevent and eradicate diseases के लिए भी vaccinations आती हैं, right? We have just कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने कोरोना से फाइट किया, right? So वो जो vaccinations थी उन diseases के लिए उनको eradicate करने के लिए हमारी government काम करती है. Government takes up projects like constructing roads, dams, etc. ये जो सड़क का बनने का काम है, then there is rapid rail का काम आता है, metro का काम होता है, dams का काम होता है, ये सब government करती है हमारे लिए. And it also provides clean drinking water and electricity, right? It frames laws, maintains law and order, punishes those who do not abide by the law. तो ये जो law है
वो भी गवर्नमेंट मिलकर बनाती हैं, राइट, जो लॉज हैं। देन इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारे जो लोग हैं उनके बीच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती हैं कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, रूल्स को फॉलो करें, एंड जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिश भी करती है। इट मेंटेन्स पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना भी हमारी गवर्नमेंट का ही काम है, वो हमारे लिए करती है। It takes relief measures for people affected by natural disasters such as floods, earthquakes. तो कभी भी ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, राइट, तो उस टाइम पे लोग जो पीड़ित होते हैं उनकी हेल्प कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है, उन तक फूड पहुंचाती है, उनके शेल्टर का ध्यान रखती है, राइट। सो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ पीपल हु सफ़र फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड आ गए, अर्थक्वेक आ गए, किसी का कुछ लॉस हो गया, सो गवर्नमेंट हर तरीके से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है। Now let us look at the 3 levels of government in our country. At the national level अगर हम पूरे देश की बात करें तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर, राइट, सब उसको गवर्न करती है हमारी जो सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल इज कॉल्ड दी स्टेट गवर्नमेंट। देन देर आर हेड्स ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट है जो एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है। देन द लोएस्ट लेवल इज दी लोकल गवर्नमेंट, एक विलेज की, एक टाउन की जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने शहर, अपने टाउन या अपने गांव की देखभाल करती है, राइट। सो इट इज़ अ 3 tier सिस्टम। सेंटर पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पे, देन एट द स्टेट लेवल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, एंड एट द लोएस्ट लेवल लोकल गवर्नमेंट। So at all the levels the government takes care of the people and takes decision for their welfare. गवर्नमेंट हर लेवल पर लोगों की भलाई के लिए ही काम करती है। The local problems of the village are looked after by the village government. अगर विलेज की कोई छोटी प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों की, तो वो अपने विलेज गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द इश्यूज ऑफ द स्टेट लाइक एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब टेक केयर करती है स्टेट गवर्नमेंट। इट डील्स विद इश्यूज ऑफ द स्टेट लाइक एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान देती है कि एजुकेशन की प्रॉब्लम ना हो, एम्पल इंस्टीट्यूट्स हों बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो, क्लीन वाटर सप्लाई होना चाहिए। ऑल दिस इज लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, जो पूरे देश को इफेक्ट करती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ों पर डिसीजंस लेती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो जो नेशनल इंपॉर्टेंस, पूरे देश के हित के जो डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है, उन लॉज का इम्पोर्टेंस क्या है। द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द लॉज ऑफ द लैंड आर ओबेड बाय द पीपल, मतलब हमारे देश के लिए, हमारी देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी लॉज हैं वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि लोग उन लॉज को ओबे कर रहे हैं, मान रहे हैं। इफ़ द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट आर वायलेटेड, अगर उनको वायलेट किया जाता है, उनको फॉलो नहीं किया जाता, देन स्टेप्स आर टेकन टू पनिश द कल्प्रिट्स, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन मेजर्स आर टेकन, स्टेप्स आर टेकन कि उनको पनिश किया जाए। However, people can also go to the courts if their rights are affected by any of the laws passed by the government. अगर लोगों को भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो लॉज पास किए हैं उससे उनकी लाइफ पर कुछ इफेक्ट आ रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम फील होती है, देन दे कैन ऑल्सो अप्रोच देम, राइट। वो भी कोर्ट में जाकर उस चीज़ को बोल सकते हैं कि दिस लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट इज अफेक्टिंग आवर लाइव्स, उनको भी ये राइट है। हेंस गवर्नमेंट मेक्स लॉज, rules and regulations which are followed by the people. So government जो ये laws, rules and regulations बनाती है, लोगों को उसको follow करना होता है। Now what are the sources of money for government? Government ये जो हमारे को इतनी सारी facilities provide करती है, utilities provide करती है, public utilities, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? So to perform its functions, government needs money and financial support which is collected from the public in the form of टैक्सेस, राइट। जो पैसा इन सब चीज़ों को हमें सुविधाएं देने के लिए जो पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को, वो हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट। पब्लिक से ही वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ऑब्टेन किया जाता है। फॉर द यूज़ ऑफ यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी यूटिलिटीज़, पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज हो गई, जो ट्रेन्स हैं, रेलवे सिस्टम हो गया,
पार्क्स हैं, ये सब हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं जो हमें गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड की हैं. एंड टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स उसमें पैसा चाहिए होता है, एंड दैट मनी कम्स फ्रॉम दी taxes that are collected from the people. The taxes are in the form of sales tax. Sales tax के फॉर्म में गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है, इनकम टैक्स के फॉर्म में लेती है, एंड दिस मनी इज़ यूज टू प्रोवाइड रोड्स बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है हाउसेज में, पार्क्स बनाए जाते हैं, पोस्ट ऑफिसेज एंड पब्लिक यूटिलिटीज, अदर पब्लिक यूटिलिटीज़, ये सब जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, they need money, and that money comes from the taxes. So that is the source of money. Taxes are the source of money for the government. Now let's see forms of a government. There are different types of government such as democratic government. पहले हम बात करेंगे democratic type of government की. In a democratic form of government, the representatives of the people run the government. मतलब लोगों ने जो अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है, वही गवर्नमेंट बनाते हैं एंड वही गवर्नमेंट को रन करते हैं. The citizens exercise their right to vote and thereby choose their representatives. लोग वोट करते हैं जिस टाइम इलेक्शंस आते हैं, और बिल्कुल हमें वोट ज़रूर करना चाहिए. इट इज़ आवर बर्थ राइट एंड ऑल्सो आवर ड्यूटी. हमें अगर हम चाहते हैं, हमें पता है अगर कोई कैंडिडेट सही है, but we are not exercising our right to vote, then that candidate can also lose. So always vote. हम जब बड़े हो जाएंगे बच्चों, आप लोग भी make sure that आप वोट ज़रूर करें इलेक्शन के टाइम पे, so that the right representative comes into the government. So जो आप representative वोट करके इलेक्ट होता है, वही हमारा जो वो हमारी गवर्नमेंट रन करते हैं. The citizens also have the right to contest an election. और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, then a citizen can also contest an election. वो खुद इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. If the government does not fulfill the expectations of the people, then it can be thrown out of power in the next elections. अगर जो आपने जो रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा किया है, आपको लगता है कि उसने जो प्रोमिसेस बोले थे वो उसने पूरे नहीं किए हैं, राइट, इट इज़ नॉट, जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में आप उसे वोट ना करें और वो इलेक्शंस आपकी जो पावर से उसको हटा भी सकते हैं आप. Now next type of government is monarchical government. In the case of monarchy, all the power lies with the king. So all the power lies with the king or queen, who is the head of the government, and the power to make decision lies with the king, who is called a monarch. तो यहाँ पे जितनी भी पावर्स हैं वो सब एक सिंगल पर्सन यानी जो किंग है, किंग या क्वीन, उसके पास होती हैं. ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर विद द किंग और द क्वीन. मोनार्क इज अबव द लॉ. वही लॉ बनाते हैं, वो अबव द लॉ हैं. He or she is not answerable to the people for any decision taken by him or her. वो अपनी विश से कुछ भी कर सकते हैं. They are not answerable to its people. उनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता. When the monarch dies, the power automatically passes to the successor who becomes the king. Automatically hereditary जो इसको बोलते हैं, वो एक के बाद एक पास ऑन होती रहती है उनकी जो थ्रोन है, राइट. सो मोनार्क जो है, मोनार्कियल गवर्नमेंट में पीपल की कोई नहीं सुनता, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ जो किंग और क्वीन जो है वही सब कुछ डिसीजंस लेते हैं. ऑल द पावर इज इन देयर हैंड. Now that is monarchical government. Next we have dictatorial government. This is also quite similar to the monarchical government. यहाँ पर भी एक single person के हाथ में सारी powers होती हैं. So in the case of an authoritarian government, which is also called dictatorship, one person heads the government and rules it on the basis of his own wish. वो भी अपनी मर्जी से ही government चलाता है, अपने देश को चलाता है. वो भी he is also not answerable to anybody. Without paying attention to the wishes of the people. वो लोगों की कोई परवाह नहीं करते, जो उनका मन करता है वो वही रूल्स लागू करते हैं, उसी तरीके से अपने देश को चलाते हैं जैसे वो खुद चाहते हैं. They are not concerned about their people. It is an undesirable form of government where people have to face many hardships due to the decisions of the dictator. So ये इस टाइप की जो गवर्नमेंट है, लोग उसको बहुत डिसलाइक करते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत हार्डशिप्स, बहुत उनको बैड टाइम्स देखने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द डिक्टेटरशिप.
This type of government does not last for a long time as the people do not like to be controlled by exploitation and fear of death. तो ऐसे लोगों में हर टाइम fear of death बना रहता है and उनका मतलब undue advantage उठाया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है. So ऐसी गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है क्योंकि लोगों उसको नापसंद करते हैं. Then we come to the parliamentary government, right? So in the parliamentary form of government, the executive derives its power from the legislature, which is called union of powers. अगर हम parliamentary form of government की बात करते हैं, then the executive means our prime minister and its cabinet, right? So जो हमारे executive हैं, prime minister and its cabinet, उनकी जो पावर आती है वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो लेजिस्लेचर है वहाँ से आती है, राइट, विच इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ पावर्स, यानी जो एग्जीक्यूटिव हैं और जो लेजिस्लेचर हैं वो मिलके काम करते हैं. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर्स. वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उनकी पावर्स सेपरेट होती हैं, उनकी पावर्स कंबाइन नहीं करते, राइट, दे हैव देयर different powers, उनकी powers separate होती हैं. The executive in the parliamentary form of government is based on the party support in the legislature. जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वही रूलिंग में आती है. सो लेजिस्लेचर में जो पार्टी होती है मेजॉरिटी होती है वही अपने रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा करती है. जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देती है, राइट. सो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दी पार्टी सपोर्ट, उनको पार्टी का पूरा सपोर्ट होता है. एंड द पॉलिटिकल पार्टी और अ कोलिशन ऑफ पार्टीज. कोलिशन मीन्स जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर ग्रुप कर एक पार्टी बनाती हैं, will generally have the majority in the legislature which controls the executive. So executive is controlled by the majority. जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उसका ही रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है. The Prime Minister and the Cabinet in Great Britain are good examples of parliamentary form of government. So Great Britain की जो Prime Minister and Cabinet है यानी जो executive है, it is a good form of example of parliamentary form of government. In India also we have parliamentary form of government. Also democratic government भी है हमारी, right? हम लोग खुद choose करते हैं अपना representative by voting. So India democratic government भी है, parliamentary government भी है, right. Next let's see, we have federal government. Federal government क्या होता है? In the federal form of government, power is divided into smaller units, each having its own government and also supervised by the central government. यानी एक जो power है वो सेंटर के पास है, राइट. सेंटर पूरा सबको गवर्न कर रही है एंड देन देयर इज द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे यूनिट्स में, टेरिटरीज में डिवाइडेड है जहाँ की अपनी खुद की भी गवर्नमेंट है, राइट, जो उसको मैनेज कर रहे हैं. एंड द एंटायर नेशन इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो हेंस देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, वन फॉर द एंटायर टेरिटरी, एक जो पूरी टेरिटरी के पावर होती है जिसके पास, एंड द सेकेंड फॉर द स्मॉलर टेरिटोरियल यूनिट्स. सो अगेन इंडिया ऑल्सो हैज़ दिस फेडरल गवर्नमेंट, राइट. हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है एंड देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स. आगे जो टेरिटरीज हैं उनको गवर्न करने के लिए सेपरेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं. सो आर इंडिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट? Unitary government is a kind of government system in which a single power, which is known as the central government, controls the whole गवर्नमेंट, राइट. मतलब पूरे देश को सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है. एक ही पावर है एक जो पूरे देश को कंट्रोल करेगी, उसके आगे कोई सब पावर नहीं है. जैसे टेरिटोरियल के टेरिटरी अलग अलग टेरिटरीज के लिए कोई ऐसी अलग से पावर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई गई है सेपरेट गवर्नमेंट. सो एक ही सेंट्रल पावर है दैट गवर्न्स द एंटायर नेशन. ग्रेट ब्रिटेन हो गया, चाइना, चिले, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ unitary form of government where the entire territory is governed from one central power. इनकी एक ही central power है जो इनको govern कर रही है. Now no government falls into well defined categories. अगर हम इंडिया की ही गवर्नमेंट की बात करें, राइट, तो वो किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होती, राइट. वो अलग अलग गवर्नमेंट टाइप्स के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हैं. So if we examine the different governments, we will find that most of them are mixed types having the characteristics of one form of the or the other. So हमारे इंडिया की बात करें तो it is federal type of government also, democratic government also,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट. जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के कुछ कुछ पार्ट्स हैं. सो एवरी गवर्नमेंट इज़ अ मिक्स, राइट. कोई भी एक सिंगल टाइप की गवर्नमेंट नहीं है. नाउ लेट्स कम टू फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है? राइट टू वोट. द टर्म फ्रेंचाइज रेफर्स टू इलेक्शन विच मीन्स द राइट टू वोट. हमारा जो वोट करने का अधिकार है, दैट मीन्स फ्रेंचाइज. The right to vote can be limited to citizens who can satisfy specified conditions. हो सकता है कि ये right to vote जो है सिर्फ उनके पास हो, like जिनके पास education अच्छी है, they possess good wealth and income. But universal adult franchise की अगर हम बात करते हैं, it means that all the citizens have the right to franchise और vote. हर citizen के पास, adult citizen के पास vote करने का right है, अधिकार है. The vote gives the citizens the right to choose the persons who govern the country. लोगों के पास ये पावर आती है कि वही लोग जो ठीक हैं वही हमारी कंट्री को रूल करें, गवर्न करें. And if citizens are not satisfied, they can replace them at the next election. और अगर लोग उनकी जो उन्होंने जो 5 साल जो टर्म अपनी सर्व की है उससे सेटिस्फाई नहीं होते गवर्नमेंट के काम से, then in the next elections they can replace that government. In Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations in 1948, the franchise is defined as the human right. जो franchise है उसे human right declare किया गया है, मतलब वोट करना हमारा अधिकार है. In the present century, the right to vote is granted as a birthright. अगर हम आज की बात करें तो it is a birthright. वोट करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपका अधिकार है कि आप इलेक्शंस में वोट करें वंस यू आर एन अडल्ट. विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस एंड क्लास. आप किसी भी रेस, किसी भी कलर, किसी भी क्रीड को बिलोंग करें, किसी क्लास को बिलोंग करें, everyone has equal right to vote. Earlier societies had denied citizens of the right to vote as a birthright. पहले ये birthright नहीं माना जाता था. Certain group of people they were kept separate from the voting process. उन्हें वोट नहीं करने दिया जाता था. But today it is a birthright. हर इंसान वोट कर सकता है और उनको करना भी चाहिए. It is their duty also. Clear? Now let's talk about democracy in India. India is a democratic country, right? लोग ही अपने representative select करते हैं जो हमारी country के लिए rules बनाते हैं, laws बनाते हैं. So the people in India have political freedom to express their opinion regarding the policies of the government. India के लोगों के पास ये पॉलिटिकल फ्रीडम है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, या जो गवर्नमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. उनके पास फ्रीडम है, वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. In many countries, enormous struggle and sacrifices have been made by the people to get a democratic form of government. Recently in Nepal, people forced the king to abdicate his powers and paved the way for ushering in डेमोक्रेसी. सो बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक वो लाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत फाइट हुई हैं, बहुत स्ट्रगल किया है लोगों ने अपने देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए. अभी रिसेंटली नेपाल ने अपना जो किंग था, राइट, उसको दे फोर्स द किंग टू एब्डिकेट, मतलब अपनी पावर्स को रिनाउंस करने के लिए किंग को फोर्स किया गया, जिससे कि वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जा सके. टुडे वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज where people choose their representatives through elections. So ये representative democracy है जिसमें हम रहते हैं, राइट, जहाँ पर लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना एक representative elect करते हैं जो कंट्री को रन करता है. Direct democracy has become unpopular because in a big country with an enormous population it is not possible to involve all the people directly for decision making. So अगर हम imagine करें हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर देते हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स सब लोग जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, हर इंसान अपनी बात खुद कहेगा, राइट, डिसीजन सारे लोग मिलके बैठ के लेंगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, इतने इसमें लोग हैं, सारे लोग एक साथ बात नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आती है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो लोग हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, राइट. Now let's come to women's suffrage movement. Suffrage मतलब क्या होता है? It means right to vote.
So many governments in Europe and America which were calling themselves democratic did not give the right to vote to every adult citizen. So बहुत सारी countries जो अपने आप को यूरोप एंड अमेरिका में अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती हैं, उन्होंने बहुत लोगों को वोट करने का अधिकार भी नहीं दिया था. They did not allow the women to vote. उन्होंने women को वोट करने का राइट नहीं दिया. They had prejudiced attitude and believed that women were not equal to men in thinking and working. उनके दिमाग में ये पहले से ही धारणा बनी हुई थी. They were prejudiced. उनके दिमाग में negative opinion था about women, that जो women होती हैं वो men से inferior होती हैं. उनकी जो thinking and working capacity होती है वो men जितनी नहीं होती. That is why they were not given the right to vote. Right? The women protested against such discrimination. A movement for equality started in America in 1848 and then it spread to other countries of Europe including Britain. फिर women ने protest करना शुरू किया, इसके खिलाफ आंदोलन किया, right, that we have equal right to vote. So उन्होंने एक movement start किया for equality and that movement was started in America in 1848 and धीरे धीरे ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी लोगों ने women ने इस movement को आगे बढ़ाया. During the First World War, जब First World War हो रहा था, when most of the men were out to fight the war, women were called in to work in factories and other places. World War First की अगर हम बात करें, जब men सब लोग फ्रंट पर लड़ाई कर रहे थे तो फैक्ट्रीज चलाने के लिए women को बुलाया गया था, right? They proved to the world that they were equal to men in all types of work and decision making. और ये टाइम था जब women ने प्रूव किया कि वो men से किसी भी फील्ड में कम नहीं है, उनके डिसीजन भी अच्छे होते हैं and they can work equally well like men. The movement became stronger and women protested by going on hunger strikes, chaining themselves to railings in public places. तो women ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया. उन्होंने कई women ने हंगर स्ट्राइक किया, कुछ लोगों ने अपने आप को चेन से बांध लिया, right? So it was their way of bringing it in the notice of the government that they want to vote. They are no less than men, they are equal. Gradually, after a long struggle, governments relented. उन्होंने हार मान ली and they gave women the right to vote as equal citizens. और इतने लंबे struggle के बाद जाकर women को vote करने का अधिकार मिला. In America, women got their voting right in 1920, right? The struggle started in 1848. Movement started in 1848 and they got their first voting right in 1920. Such a long struggle these women did. India is one country where even in the first general elections the principle of universal adult franchise was adopted. India एक ऐसी country है जहाँ पर जब पहले election हुए तब भी women को right to vote दिया गया. हर adult जो universal adult franchise से उस time पे eligible था, सबने vote किया, right? Now let's talk about the struggle against apartheid. Apartheid की बात करेंगे. While the governments in Europe and America were not giving equal rights to the women, there were other governments which did not give equal right to certain citizens based on their caste or race, right? जहाँ पर एक तरफ तो women को वोट नहीं दिया जा रहा था, वहीं कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे राइट उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं देती थी. फॉर एग्जाम्पल इन साउथ अफ्रीका द पीपल वर डिवाइडेड इन रेसेस. उनको रेसेस में डिवाइड किया जाता था, जैसे वाइट्स हो गए, देन ब्लैक्स जो वहाँ के नेटिव्स थे, एंड कलर्ड पीपल लाइक जो इंडियंस हो गए उनको कलर्ड उसमें डाला जाता था. एंड देयर वर वाइट्स एंड ब्लैक्स. So the natives, they had dark complexion. जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे उनके dark complexions थे, they were known as blacks. While the whites, the natives had dark complexions, while the whites came from northern regions and became settlers. So ये northern regions से आके वहाँ settle हो गए थे जो whites थे. They had money and they bought huge areas and became rich and powerful. So ये वहाँ पर आके settle हुए, उनके पास पैसा था, उन्होंने बहुत कुछ खरीद लिया और वहाँ के मालिक बनकर बैठ गए, right? They became rich and they became powerful because they had money. They started ruling over the locals and the other outsiders who came in as laborers and workers. वो उन पर rule करने लग गए. जो local वहाँ के लोग थे, natives थे, black people, they started ruling over them. The whites had separate colonies for themselves and did not even allow the others to come there to live. Whites ने अपनी separate रहने की colonies बनाई हुई थी और वहाँ पर
ब्लैक्स को एंटर भी नहीं किया जाता था, राइट. दे कुड नॉट ओनली वर्क, दे कुड ओनली वर्क देयर एज स्लेव्स और सर्वेंट्स. अगर उनको वहाँ एंटर करना है तो दे कुड वर्क ओनली एज स्लेव्स. उनको सिर्फ स्लेव्स की तरह वहाँ पर गुलामों की तरह एंटर करने दिया जाता था. दे वर फोर्स्ड टू गो टू सेपरेट स्कूल्स, हैड सेपरेट हॉस्पिटल्स. उनको सेपरेट, उनके स्कूल्स भी अलग किए हुए थे. दे कुड नॉट गो टू नॉर्मल स्कूल्स. उनके हॉस्पिटल्स भी अलग थे, राइट. एंड वर टोटली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मीन्स बहुत भेदभाव किया जाता था उन ब्लैक्स से. दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, दैट इज नोन एज अपार्थीड. The native people had to struggle for a long time against this discrimination. इस भेदभाव से बहुत लंबे टाइम तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था जो नेटिव्स थे साउथ अफ्रीका के. महात्मा गांधी, he also played a great role in their struggle for equality. महात्मा गांधी ने भी उन लोग के स्ट्रगल में उनका साथ दिया. The struggle intensified in 1970s. 1970s के अराउंड उनका जो स्ट्रगल था वो काफ़ी उसने ज़ोर पकड़ा. And in 1991 the apartheid laws were abolished. Finally in 1991 ये जो सारे laws थे apartheid के उनको ख़त्म कर दिया गया, abolish कर दिया गया. And in 1994 Nelson Mandela won the elections and became the president of South Africa. So 1994 में जाके नेल्सन मंडेला जो कि वहाँ के नेटिव थे, वो एक ब्लैक थे, राइट. वो वहाँ की गवर्नमेंट में आए. ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994 by winning the elections, right. So this was struggle against apartheid. सारे apartheid laws को abolish किया गया in 1991. Clear everyone? So now you have a good overview of the different kinds of governments in different countries. Okay, this is glossary. Kindly go through this. Let's take a quick review. The government looks after the administration ऑफ अ कंट्री. एक जो गवर्नमेंट है वो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखती है. गवर्नमेंट्स किस टाइप की होती हैं? डेमोक्रेटिक होती हैं, मोनार्कियल, डिक्टेटोरियल, एंड देयर आर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फ्रेमवर्क दैट द कंट्री विल बी गवर्न्ड बाय, यानी आउटलाइन बताते हैं, हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं. दीज आर द रूल्स दैट द सिटीजन शुड अबाइड बाय. इस तरीके से कंट्री चलनी है, डिसीजंस लेते हैं. द फ्रेंचाइज enables people to elect the representatives, यानी वोट करने से हम अपने representatives elect कर सकते हैं. All right. Now let's begin with our exercise, children. Darken the circle of correct option in the OMR sheet. हमें OMR sheet provided है. Correct option को उसमें आप fill करेंगे. Let's see the first one. A government is a किस type की organization है? Is it a political organization, religious organization, social organization, or none of these? So a government is a political organization, right? Number 2, a government works according to. So government किसके हिसाब से work करती है? According to the constitution, right? In a democratic government, the ministers are elected by किस जो ministers हैं democratic government है उनको कौन elect करते हैं? President, king or queen, people, or none of these? So yes, the representatives, the ministers, they are elected by the people. The right to vote is a birthright. So now it is a birthright to vote. Number 5. What do you understand by the word democracy? Democracy से आप क्या समझते हैं? Authority of the people, right? ये authority है लोगों की. People are the ones who who elect their representatives and they form the government. Now fill in the blanks. Number 1, children below dash years of age should not be made to work. 14 years से छोटे बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए. It comes under child labor and that is against the laws. It is illegal. So children below 14 years of age should not work. The government at national level is responsible for the whole country, right? National level पे यानी जो हमारी central government है, it is responsible for the whole country. Number 3, the government protects the dash of the country. Government किसको protect करती है? It protects the people. अपने लोगों को protect करती है. It protects the people of the country. Number 4, the citizens also have the dash to contest an election. Citizens भी
कंटेस्टेंट इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं, उसमें खड़े हो सकते हैं. सो इट इज देयर राइट. And number 5, a movement for equality started in America in 1848. Right? Now, true or false? Number 1, in a monarchy, people are free to elect their representatives. क्या monarchy में, monarchical form of government में लोग अपने representatives choose कर सकते हैं? No, वहाँ पे सिर्फ किंग और क्वीन का रूल होता है और आगे से उन्हीं के बच्चे सक्सेसर्स होते हैं. सो इट इज फॉल्स. नंबर 2, इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. येस, दे हैव दैट. ट्रू. नंबर 3, सफरेज मीन्स राइट टू वोट इन एन इलेक्शन. येस, ट्रू. नंबर 4, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. येस, ट्रू. एंड नंबर 5, in federal government, all authority and power are vested in a single person. No, in a federal government, two-layer government hoti hai, central and then the one for the territory and one for the separate territories. So this is false. Clear? Now these are detailed questions. We have gone through them while going through the chapter. Please try to attempt them. And that was all for this chapter. I hope you had a good learning with your teacher, Achal. I hope to see you in the next chapter. Till then, you all stay blessed and have a good time. Bye, children.